today is that day that no Indian can ever forget, especially for those of us who were right there reporting that story, and for the city of Mumbai that had to live through that 3-day siege. The images that we're about to see on your screen are those that can never be forgotten. Even today, I'm sure that it sends a shiver down our collective spines when we look at these images out of Mumbai and what happened on that fateful evening when Ajmal Kasab and 9 other terrorists pushed in by Pakistan basically launched a war against India. In many ways, this would change the India-Pakistan relationship forever, but it would also change the way we look at our men and women in uniform, and it would also change the way we understand courage. This was in our backyard, this was not happening to other people, and this was right under our skin and too close to the bone. There are many different ways to remember 26/11, but we choose to remember in the year of the pandemic, 26/11, by acknowledging and tributing the story of a young nurse, a frontline warrior today, who's been a warrior of a different kind 12 years ago. If we bring up these images now, you will see in these pictures a young woman's story, Yogita Bagar. Yogita Bagar is 35 years old today, but on that fateful evening, she was just 23. She was a nurse on duty at Mumbai's Kama Hospital when Ajmal Kasab came storming into her hospital. She's a frontline warrior today, but she was no less of a soldier on that particular night. And this is an incredible story. It's an extraordinary story of courage. And I have met Yogita before, and I can tell you that she's outspoken today and she was outspoken then. And it is my great pleasure to welcome on the program Yogita Bagar, जिसके बारे में हम यही कह रहे थे कि फ्रंटलाइन वॉरियर आज भी हैं और उस दिन भी एक सोल्जर जैसी ही थी योगिता। मुझे याद है कि जब मैं आपसे मिली थी तो आपने मुझे बताया था कि कैसे उस रात अजमल कसाब आपके अस्पताल आए, कैसे उन्होंने धमकी दी, कैसे अपनी बंदूक लेके वो कामा हॉस्पिटल पहुंचे। 26/11 की रात के बारे में क्या याद है? हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि आज भी कामा हॉस्पिटल में, योगिता आपके जवाब देने से पहले मैं ये तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ, गोलियों की तस्वीरें। आज भी आप एलिवेटर में जाएं, आप ऊपरी मंजिलों में जाएं तो आप बुलेट होल्स देख सकते हैं 6th फ्लोर पर। ये 6th फ्लोर में आपको दूर से दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप क्लोजअप में भी देखें तो आप देख सकते हैं दोज आर द बुलेट्स that Kasab and other terrorists fired that ripped through the metallic structures in Kama Hospital. And watching it all unfold was 23-year-old Yogita Bagar. I met her as a frontline warrior at the COVID frontier and then discovered that she was this incredible woman who had fought both the pandemic and Ajmal Kasab. Yogita, उस दिन के बारे में क्या याद है? पहले तो ये आप हमें बताइए। गुड इवनिंग मैम। मैम उस दिन मेरी मतलब 26/11/2008 को मेरी नाइट शिफ्ट थी। तो नाइट शिफ्ट में मतलब हम लोग समझो 9:30 के आसपास खाना खाने के लिए बैठे थे। तब हमें मतलब कुछ ऐसे फटाकों की जैसे आवाज आ रही थी। तो हमने मतलब नीचे झांक के देखा तो हमें मतलब कुछ ऐसे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसे पुलिस वगैरह दिखाई दे रहे थे। तो 5-10 मिनट के बाद मतलब ऐसे एक नीचे से वॉचमैन भाग भाग के ऊपर आया। मेरा जो वार्ड है वो पोस्टनेटल केयर यूनिट वार्ड था, जहाँ पे मतलब आफ्टर डिलीवरी मदर और बेबीज को शिफ्ट किया जाता है और उनकी केयर की जाती है। तो वहाँ पे मतलब अराउंड 35 के आसपास मतलब पेशेंट थे मेरे वार्ड में। और उस टाइम पे मतलब दोनों साइड में वार्ड था, मतलब एक बीच में पैसेज है और दोनों साइड में वार्ड था, मतलब यहाँ पे भी एक यहाँ पे भी है। और उस टाइम पे हम 2 ही स्टाफ नर्सेस मतलब ड्यूटी पे थे, जिसमें से मेरी एक सीनियर थी नीता मुरंजन सिस्टर करके, जो अभी रिटायर हो चुकी है, और मैं थी, और हमारे साथ सिर्फ 2 फीमेल सर्वेंट थे। तो उस टाइम पे एक वॉचमैन भाग भाग के ऊपर आया और बोलने लगा कि नीचे हमारे 2 सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया गया करके। तो हम लोग को एक्चुअली पता नहीं था कि टेररिस्ट नाम की चीज होती क्या है करके। तो उस टाइम पे मतलब हम लोग ने, हमारे दिमाग में जितना आया, हम लोग ने पेशेंट लोगों को फटाफट उठाया, और जहाँ पे हम लोग को दिखा एक मतलब दोनों साइड में एक छोटी रूम थी, तो वहां पे हम लोग ने उनको मतलब विदिन 5 मिनट के इसमें हम लोगों ने उनको अंदर छुपाया। उनके साथ उनके बेबीज भी थे, और मतलब उनके रिलेटिव्स भी जो नीचे से भाग भाग के आए थे, वो रिलेटिव्स भी थे, और वो सब मतलब एक रूम में हम लोग सब हाइड हो गए। और एकदम फटक से हमने सोचा कि लाइट बंद की जाए करके। तो मतलब ब्लैकआउट करने की वजह से शायद उन लोग को हम नहीं दिख सकेंगे करके,
तो हमने फटाफट ब्लैकआउट किया। और जब तक हम मतलब हमारे एक गेट था, मतलब हमारे जो वार्ड का गेट था, उसको बंद किया, तो तब तक वो लोग मतलब सामने खड़े थे। फटक से हम लोग ने कुलूप लगाया, मतलब जो लॉक था वो लगाया, और हम लोग भी अंदर जाके छुप गए मतलब। तो उसके बाद तो आई थिंक डर लगा उस समय आपको? डर तो लगा था, लेकिन उस टाइम इतना सोचने के लिए टाइम नहीं था मैम, कि मतलब हम लोग डरे या कुछ करे। हमारे दिमाग में इतना ही था कि पेशेंट लोग को कैसे हम लोग सेव करें, उनकी जान कैसे बचाए करके। और उसके बाद कंटिन्यू जो 10:30 बजे से जो पोलियो की आवाज चालू हो गई, फायरिंग की आवाज चालू हो गई, 5th और 6th फ्लोर के बीच में पुलिस और ये टेरेस के बीच में फायरिंग होने लगी, कंटिन्यूअसली फायरिंग। हम लोग वो रूम में थे, और रूम के बाजू में ये सब फायरिंग चालू थी। बीच में जो पैसेज आपने जो अभी लिफ्ट का जो दिखाया, वो जी जी। बीच में पैसेज सब फायरिंग चालू थी। तो हम लोग को मतलब एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन डर बहुत लग रहा था कि क्या होगा। मतलब हम लोगों ने तो फटाफट मैंने क्या किया, सबके मोबाइल ले लिया है, पेशेंट लोग के पास से मोबाइल लिए, और मोबाइल मैंने साइलेंट पे डाल दी, ये ताकि आपको मतलब ये इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको कैसे आया कि आप पेशेंट्स के मोबाइल्स आपने ले लिए? मैम मैंने मतलब ये सोचा कि मतलब बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हम्म जैसे वो लोग वहां पे आए ना हमारे फ्लोर पे, तो उन्होंने ना हमारा जो वार्ड का जो गेट है ना, वो जोर जोर से मतलब हिलाना चालू किया, क्योंकि उनको वहां पे कोई दिख नहीं रहा था। हम हम्म लोगों ने जो ब्लैकआउट किया था उसकी वजह से उनको कोई दिख नहीं रहा था, उसके लिए वो जोर जोर से गेट को मतलब हिला रहे थे। तो उस टाइम पे अब ये सब मतलब न्यूज में दिखा दे रहे थे कि मुंबई पे अटैक हुआ है करके, तो उसकी वजह से सब पेशेंट का फोन बजने लगा। तो फिर मैंने ये सोचा कि सबका मतलब सबको बोलने के लिए अलाउ करे, लेकिन मोबाइल को साइलेंट करे, क्योंकि अपने को ये पता नहीं था कि आगे जाके क्या हो सकता है क्या नहीं करके। इसलिए मैंने फटाफट सबसे तो मोबाइल इसको लिया। इसको प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं, बिकॉज एट 23 यू वर रियली अ वेरी यंग, योगिता जी, कि आप पोस्ट नेटल बेबीज की देखभाल करी थी। नाउ जस्ट इमेजिन फॉर आवर व्यूअर्स, अजमल कसाब इज इन कामा हॉस्पिटल, योगिता बगाड़, all of 23 is on duty. The terrorists come, they storm the hospital, they're firing their AK-47s. What do you do if a baby cries? योगिता जी, आपने फोन तो साइलेंट पे कर दिए, पर आप बेबीज को कैसे रोक सकती हैं रोने से? तो इसलिए मैम मैंने वही तरीका सोचा कि अभी हम वार्ड में काम करते हैं, तो उस टाइम पे हमें पता चलता है कि कौन सी मदर को अच्छे से फीड आ रहा है, कौन सी मदर को नहीं आ रहा है। तो उस तरीके से हमने सोचा कि जिनके जिनके बेबीज रो रहे थे, उनको हमने वो उन मदर को सौंप दिया जिनको अच्छे से फीड आ रहा है, और वो बेबीज को उस टाइम के लिए हम लोग ने शांत किया। फायरिंग तो कंटिन्यूअसली हो रही थी, इतनी कंटिन्यूअसली हो रही थी कि मतलब लाइफ में हमने कभी सोचा भी, मतलब कभी हमने देखा भी नहीं रहेगा कि ऐसा कुछ फायरिंग होती भी नहीं है। और फायरिंग के साथ साथ वो लोग ग्रेनेड भी डाल रहे थे। हमारे फ्लोर पे ग्रेनेड, उन्होंने ग्रेनेड डाला ग्रेनेड, था, हाँ हाँ, फिर हैंड ग्रेनेड डाले थे उन लोग ने 4। तो उस वजह से हमारी जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग पूरी शेक हो रही थी। शेक होने से मतलब हम लोग को एक एक मिनट दिमाग में ये ख्याल आ रहा था कि पता नहीं मतलब ये फायरिंग से मरेंगे या बिल्डिंग नीचे गिरने से मरेंगे। ऐसा ख्याल मतलब बीच बीच में हमारे दिमाग में आ रहा था। लेकिन मैंने मेरे हाथ में भगवान का ये लेके रखा था, और भगवान को प्रार्थना भी कर रही थी। और मेरे घर वालों को भी मैंने बोल दिया था कि मुझे पता नहीं मैं मतलब कल घर आ पाऊंगी कि नहीं करके, लेकिन जितना मेरे से होता था उतने मैंने किया मैम। और भगवान की दया से रात में 2:30 को कमांडोज आए हमारे हॉस्पिटल में, पुलिस फोर्स आई पूरी। तो आज उन्होंने भी 12 साल, आज भी 12 साल बाद जब आप वो रात के बारे में सोचती हैं, एंड आपने घर कैसे फोन किया और आपने बोला पता नहीं मैं वापस पहुंच पाऊंगी या नहीं, आज भी वो आंसू सूखे नहीं और शायद कभी नहीं सूखेंगे, योगिता। और लेकिन लेकिन जैसे हम लोग को 2:30 को कमांडो लोगों ने निकाला मतलब। आपने जब अपनी मम्मी को फोन किया तो आप उस समय काम, मतलब आपने उनको कैसे घबराने से, क्योंकि आपके माइंड में
आज तो रो सकती हैं आप बिकॉज द वर्स्ट इज ओवर, लेकिन उस समय जब मम्मी को फोन कर रही थी, वर यू क्राइंग? आप रो रही थी कि आप बिल्कुल काम थी? नहीं 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 मैम, ऑब्वियसली मैं रो रही थी क्योंकि मम्मी सामने से रो रही थी, इसलिए मुझे भी थोड़ा रोना आ रहा था। लेकिन उसके साथ मुझे मेरी ड्यूटी निभानी है, मुझे मुझे मेरे पेशेंट को भी देखना है, वो मेरे दिमाग में था। योगिता, थैंक यू सो मच, आपने बहुत इंस्पायर किया। आप 26/11 की रात भी सोल्जर रही और कोविड पैंडेमिक के दौरान भी आप सोल्जर हैं। जब ये डिबेट चलती है whether women should be allowed into combat, मैं तो कहती हूँ कि हमारे सामने एक लिविंग एग्जाम्पल है। You have been in combat during pandemic and during 26/11. Thank you so much. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.